બોલો ચોખા ઈશાની ધર્મ લાભ અધેન વંદામી ધર્મ લાભ આમી હ ગુરુ પસાય સંદિશાવિહ ત્રીજો નમો હરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયર્યાણ નમો યુવજાયાણં નમો લોએ સવ્વસાહુણાં એસો પંચ નમુકારો સવ્વપાવપણાશનો મંગલાણં ચ સવ્વેશિં પરમં હોઈ મંગલમ મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ મંગલમ સ્થૂલિભદ્રાદ્યા જૈનો ધર્મોસ્તુ મંગલમ ઓંકારં બિંદુ સંયુક્તં નિત્યં ધ્યાયન્તિ યોગિના કામદં મોક્ષદં ચૈવ ઓંકારાય નમો નમઃ શાંત પ્રાજ્ઞવરો વક્તા ગચ્છાધીશ સુસંયમી શૂરીશ્વરો ગુણાબ્ધિ સ્યાत् સંગવૃદ્ધ્યૈ સદોદ્યમી અજ્ઞાનતિમિરાન્ધાનાં જ્ઞાનાંજનશલાકયા નેત્રముન્મીલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. ઓમ નમો જીણાણામ શરણાણામ મંગલાણામ લોગોત્તમાણામ રામ રીમ રૂમ રૈમ રમ રહ અસિયા ઉષા ત્રૈલોક્ય લલામ ભૂતાય શુદ્રોપદ્રવ શમનાય અર્હતે નમઃ સ્વાહા અરિહંત 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 અરિહંત
અરહમ 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 નમઃ ઓમ ઐં નમઃ ઓમ ઐં નમઃ ઓમ ઐં ઓમ રીમ નમો નાણસ 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 અન્યથા શરણં નાસ્તિ ત્વમેવ શરણં મમ તસ્માत् કારુણ્ય ભાવેન રક્ષ રક્ષ જિનેશ્વર. મહાપુણ્યોદય આપણને દેવોને પણ દુર્લભ એવો આ મનુષ્ય અવતાર, એ પણ પાછા ભારત જેવા આર્ય દેશમાં, અને એમાં પણ પાછા જૈન જેવા ઉત્તમ કુળમાં, જેમાં કેન્દ્રથી માંડી નાનામાં નાના બધા જીવોની રક્ષા અને બધા જીવોના કલ્યાણ, મંગળ અને મોક્ષની ભાવના કરવામાં આવે છે. આવું મહાન જૈન શાસન, એમાં આપણને ધર્મિષ્ઠ એવા માતા પિતા પરિવારને ત્યાં જન્મ મળ્યો છે. અને એમાં પણ તમે બધા બાળકો, જે 8 બાળકોએ આજે ઔષધ કર્યા છે, ખરેખર ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ને અનુમોદનાને પાત્ર છો કે નાની ઉંમરમાં તમને શિબિરમાં આવવાના ભાવ જાગ્યા, અને એ પ્રેરણાને ઝીલીને તમે લોકોએ આજે આ ઔષધ વ્રત એટલે 1 દિવસનું સાધુપણું, એની નેટ પ્રેક્ટિસ તમે કરી રહ્યા છો. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના છે. તમારા વડીલોને પણ ધન્યવાદ છે કે તમારા વડીલોને પણ ધન્યવાદ. વહેલી સવારે તમને અહીંયા મૂકી ગયા દૂર દૂરથી. અને હવે વ્યાખ્યાનમાં આપણો શું વિષય ચાલુ છે? ટોક વિથ ગોડ. ભગવાન સાથે વાતચીત. ભગવાન સંબંધી વાતો તો આપણે કદાચ ક્યારેક કરી હશે, પણ ભગવાન સાથે વાત કરવાની છે. ભગવાનને પ્રતિમા કે મૂર્તિ કે ચિત્ર રૂપે નથી વિચારવાના. સાક્ષાત જીવન ભગવાન છે, અને એની સાથે આપણે વાતચીત કરવાની છે. છેલ્લા 4-5 દિવસથી ભગવાને આપણે ઘણા વાલા ખાલાવાલા કર્યા, ઘણી વિનંતીઓ, ઘણી આરતીઓ, ઘણી કાકલુકીઓ કરી, અને આપણા હૃદયની જે સ્થિતિ છે કેવી અત્યારે એનું વિગતવાર આપણે જ્યારે વર્ણન કર્યું, અને છેલ્લે જ્યારે ભગવાનને આપણે ખાતરી આપી કે ભગવાન એકવાર મારા કર્મોના ગોડાઉનને ખાલી કરી દો, ખતમ કરી દો, સળગાવી દો, પછી હું કોઈ પાપ કરીશ નહીં, મનથી પણ પાપનો વિચાર પણ નહીં કરું. આવી ગેરંટી, આવી ખાતરી ભગવાનને આપી. ત્યારે હવે આપણી આવી કંઈક યોગ્યતા પાત્રતા જોઈને ભગવાન આપણને શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ ભાષામાં જવાબ આપે છે. આપણે તો લગભગ 25 પાના ભરાય, હા, એટલું બધા વિનંતી પત્રો લખ્યા. ભગવાન માત્ર હવે 2 પાના ભરાય, એટલા થોડા શબ્દોમાં. કારણ કે ભગવાન પણ સમજે છે કે આપણી યાદશક્તિ અત્યારે થોડી કમજોર છે. હાઇબ્રિડ અનાજ વગેરે ખાઈને અવસર્પિણી કાળના પ્રભાવે પણ આપણી યાદશક્તિ કમજોર છે. એટલે ભગવાન બહુ વિગતવાર વિસ્તારથી નથી કહેતા, શોર્ટ એન્ડ પણ સ્વીટ, બહુ જ માર્મિક હવે જવાબ આપે છે આપણી બધી કાકલુડીઓ, વિનંતીઓ વગેરેનો. તે ધ્યાનથી સાંભળજો. લિસન કેરફુલ્લી. લુક હિયર એન્ડ લિસન કેરફુલ્લી. પરમાત્મા કહે છે, વત્સ
वत्स यानी बेटा। आज राजेश अंकल आप सबको बेटा 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 करके कहते हुए सिखाते थे ना सब औषध की विधियाँ। हाँ, भगवान तो हमारी माता से भी बढ़कर हैं, माता और पिता से भी कई गुना बढ़कर हैं। तो भगवान की प्यार से अपने को संबोधित करते हैं, वत्स यानी बेटा, तारी वेदना व्यथा विनंती जाणी, केवल ज्ञान द्वारा। भगवान तो પહેલેથી બધું જાણે છે। તારી કરુણ પરિસ્થિતિ પણ જોઈ કેવલ દર્શન દ્વારા, પરંતુ આજે મારે તને તારી ગલત માન્યતામાંથી બહાર કાઢવો છે। ગલત માન્યતા જ બીજું નામ જેનું મિથ્યાત્વ છે। બધા પાપોનું, સંસાર પરિભ્રમણનું, બધા જ દુઃખોનું મૂળ હોય તો એ ગલત માન્યતા રૂપી મિથ્યાત્વ છે, ઊંધી માન્યતા। બરોબર? હવે અહીંયા કઈ રીતે આપણી ઘણી બાબતોમાં આપણી ઊંધી માન્યતાઓ, ગલત માન્યતાઓ છે। જેમ કે શરીરને આપણે આપણી જાત માની રહ્યા છીએ, એ સૌથી મોટી ગલત માન્યતા છે। સુખ તો જાણે કે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોના ભોગવટામાં છે, આ પણ બહુ મોટી ભ્રાંતિ છે। સુખ છે આત્મામાં સાચો આનંદ, એને બદલે 5 ઇન્દ્રિયના સારું ખાવું પીવું, હરવું ફરવું જોવું, આ બધામાં સુખની ભ્રાંતિ, આ પણ ગલત માન્યતા છે। પણ અહીંયા આપણને બહુ માર્મિક ભગવાન આપણને ઉપદેશ આપે છે। આપણી માન્યતા શું છે? આપણને પરેશાન કોણ કરે છે? દુઃખ કોણ આપે છે? કર્મ દુઃખ આપે છે ને। કાં તો આપણે કોઈક નિમિત્ત બનનાર જીવને ઉપર દ્વેષ કરીએ કે આ જીવ આમ કરે છે માટે મને આ દુઃખ કે તકલીફ છે, આ એ મોટી ગેરસમજણ ભ્રાંતિ છે। તો નિમિત્ત માત્ર છે, મૂળ તો કર્મો। બરોબર ને? તમે એમ કહેશો કર્મો, પણ ભગવાન એનાથી પણ કંઈક જુદી વાત કહેવા માગે છે। આપણી માન્યતા છે કે ઉદયમાં આવેલા પાપ કર્મો તને હેરાન પરેશાન કરે છે, આ તારી માન્યતા જ મિથ્યા છે। પહેલાં તો ઉદયમાં આવેલા અશુભ કર્મો પાપ કર્મો, એના કારણે હું દુઃખી છું, આ માન્યતા પણ ભગવાન કહે છે મિથ્યા છે। બોલો, સાચી માન્યતા શું હોવી જોઈશે? કહેશો કોઈ? આ તે જ પેદા કરેલી આ એક ભ્રમણા છે, ભ્રાંતિ છે, ગેરસમજણ છે। અને એ ગેરસમજણ, ભ્રાંતિ કે ભ્રમણા તને નિઃસત્વ કરે છે, સત્વહીન, શક્તિહીન, નિસ્તેજ બનાવે છે। વાસ્તવમાં ઉદયમાં આવેલ પાપ કર્મો નહીં, પણ તે પાપ કર્મને બંધાવનાર 3 અક્ષરનો શબ્દ છે અને 4 એના પેટા ભેદ છે। એ છે પાપ કરવો બંધાયા સાથી ભાઈ। હા, શાબાશ। જો અમારા નાનકડો વીરકુમાર પણ જવાબ આપી છે કે કષાય। કષાય કેટલા છે? 4 કષાય છે રમણભાઈ। હા, આપણે જયદેન્દ્રભાઈ કર્યા 4 કષાય? દાન, શીલ, તપ અને નહીં? તો એ શું છે? દાન, શીલ, તપ ને ભાવ, એ 4 શું છે? ધર્મના 4 પ્રકાર છે। કષાય 4 કયા? ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ। આ 4 માટે કષાય શબ્દ વપરાય છે। કષાય કેમ કહેવાય? એમાં 2 શબ્દ છે, કશ પ્લસ આય, કશ વત્તા આય। કશ એટલે શું થાય? વીરકુમાર ખબર છે? કશનો અર્થ સંસાર। કશનો અર્થ સંસાર કેમ થયો? તો કે જે સંસારમાં જીવો અનેક પ્રકારના કષ્ટ, દુઃખો, અનિચ્છાએ પણ જેને સહન કરવા પડે છે જીવોને, માટે કશ એટલે સંસાર। અને એનો આય, ઇન્કમ, લાભ, પ્રાપ્તિ, સંસાર પરિભ્રમણની વૃદ્ધિ જેનાથી થાય એને કહેવાય છે કષાય। એના 4 પ્રકાર: ક્રોધ, બરોબર છે, માન, માયા ઓર લોભ। આપણે સામાન્ય ક્રોધને કષાય સમજીએ છીએ, પણ ખાલી ક્રોધ એ કષાય નથી, પણ મીન્સ માન, માયા અને લોભ। અંગ્રેજીમાં ક્રોધને શું કહે? બાળકો બોલો, એંગર। સભી બચ્ચે બોલો। और માનને શું કહેવાય અંગ્રેજીમાં? ઈગો। ईगो, अभिमान, अहंकार। और माया इल्यूजन। इल्यूजन तो भ्रमણા એક પ્રકારનું, ચીટિંગ। ચીટિંગ માયાનું શું કહીશું? ચીટિંગ, કોઈને છેતરવું, ઠગવું વગેરે। અને લોભને અંગ્રેજીમાં શું કહેશું? ગ્રીડ, GREED, ગ્રીડ, લોભ। એંગર,
ઈગો, ચીટિંગ એન્ડ ગ્રીડ. આ ચારને શું કહેવાય? કષાય. બરોબર? જેનાથી આપણું સંસારની રખડપટ્ટી ભાવ ભ્રમણ અનંત જન્મો સુધી ચાલ્યા જ કરે છે, ચાલ્યા જ કરે છે. આપણે બધા દુઃખોનું મૂળ કોઈ રૂટ કોઝને પકડવું જોઈએ. જો કોઈકના ઘરના આંગણાને શું કહેશું અંગ્રેજીમાં? ઇન ધ કમ્પાઉન્ડ ઓફ યોર હોમ ઇફ ધેર ઇઝ અ ટ્રી નેમ્ડ બબુલ. બાવળને અંગ્રેજીમાં શું કહેશો? એ thorn tree, a tree in which there are so many thorns. એનું ટ્રી હોય તમારા ઘરના આંગણામાં, હા, ઇન ધ કમ્પાઉન્ડ ઓફ યોર હોમ. અને એની જે એના થોર્ન હોય મોટા મોટા, એ તમારા પગમાં લાગ્યા કરે છે, હા, ઘડી અને એના કારણે બહુ પેઇન થાય છે. હવે કાયમ માટે આનું સોલ્યુશન કરવું હતું, બરાબર? તો એક બાળકે શું કર્યું કે એ થોર્ન જે નીચે પડ્યા હતા ને, હા, એ બધા વીણી સાફ કર્યા, અથવા ઝાડુથી સાફ કર્યા અને બહાર દૂર ફેંકી આવ્યા. તો આ પ્રોબ્લેમ કાયમ માટે સોલ્વ થશે? આ તો ટેમ્પરરી સોલ્યુશન છે, બરાબર ને? તો બીજા બાળકે શું કર્યું કે થોડું ઝાડ ઉપર થોડુંક ચડી, હાથમાં લીધી કુહાડી, શસ્ત્ર, વેપન, અને જેમાં કાંટા બહુ હતા એની ડાળીઓ, એની બ્રાન્ચીસ, એને કટિંગ કરવા લાગ્યો. તો પણ આ પ્રોબ્લેમ કાયમ માટે સોલ્વ થશે? નહીં થાય. ત્રીજો બાળક શું કરવા લાગ્યો? થર્ડ બોય, એણે એના શું કહે ઝાડના થડને શું કહેવું? થર્ડને ટેમ. વોટ ઇઝ સ્પેલિંગ ઓફ ટેમ? STEM. સ્ટેમ મીન્સ થર્ડ, ઝાડ. તો એને કાપ્યું. તો એ પ્રોબ્લેમ કાયમ માટે પરમેનન્ટલી સોલ્વ થશે? નહીં થાય. પરમેનન્ટલી સોલ્વ કરવા માટે આંગળી ઊંચી કરો બાળકો. આર્યન કે બોલતો જવા. પરમેનન્ટલી સોલ્વ કરો આ પ્રોબ્લેમને, કાંટા વાગે જ નહીં. તો શું કરવું જોઈએ? आदर्श बोल से क्या करना चाहिए? चलो तो हिंदी गुजराती समझता नहीं होगा. हाँ बोल, क्या करना चाहिए? If you want to remove or solve the problem permanently, what should you do? पेड़ ने रिमूव करवानु. केवी रीते? तो कापी नाख्यो ने. The fourth boy cut the stem. हाँ, रूट्स એના એ જે પેડ એટલે ટ્રી છે, ઝાડ છે, એના મૂળિયા સહિત એને કાપવામાં આવે તો પછી એ જલ્દી ફરી ઉગી શકે નહીં ને આપણો પ્રોબ્લેમ કાયમ માટે सॉल्व થઈ જાય. वेरी गुड, धन्यवाद भाई. इसको इनाम दो. हाँ भले बाद में देना. तो देखो ये बच्चे भी समझते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो हाँ ब्रांचेस या स्टेम वगैरह को काटने से नहीं, वो टेम्पररी सॉल्यूशन होता है. परमानेंट सॉल्व करना हो तो उसका जो रूट कोज है उसका ट्री का, उसको उखेड़ना पड़ेगा. बराबर? इसी प्रकार से इसी प्रकार से हम लोग जो दुखों का सहन कर रहे हैं संसार में, जन्म मरण अनंत काल से करते आए हैं. नरक में, निगोर में, एकेंद्रिय में, विकेंद्रिय में एनिमल्स बने, बर्ड्स बने, प्लांट्स बने. सभी का रूट कोज अपन बोलते कर्म है, लेकिन कर्म का भी रूट कोज क्या है? कर्म कैसे बनते हैं? अपने आप नहीं चिपक जाते हैं. जब भी हम एंगर करते हैं, ईगो करते हैं, चीटिंग करते हैं या किसी प्रकार की ग्रीड करते हैं, तब वो कर्म चिपकते हैं हमारी आत्मा में. जैसे आपने मालूम, आपको लोह चुंबक किसको बोलते हैं? आयरन को जो खींच लेता है उसको मैग्नेट. हाँ मैग्नेट, बरोबर है. तो मैग्नेट जैसे लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, इसी प्रकार से जब हम चार में से कोई भी कषाय करते हैं ना, तब हमारे आत्मा में एक प्रकार की चुंबकीय शक्ति, पावर उत्पन्न होता है. उससे जो पूरे विश्व में सूक्ष्मतम पार्टिकल्स है कर्म के, जिसको कार्बन वर्गना बोलते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं हमारी सोल के साथ और चिपक जाते हैं. उसको बोलते हैं कर्म का बंध हुआ. अथवा दूसरा उदाहरण ले लें, जैसे समझो कोई दीवार है, वॉल, वो अगर चिकनी है, तेल लगाया हुआ है और उसके ऊपर डस्ट डालेंगे तो चिपक जाएगी ना,
ऐसी कोरी होगी, लस्सी होगी तो ज़्यादा नहीं चिपक पाएगी, लेकिन अगर वो चिकनी है तो उसके ऊपर डस्ट चिपक जाती है। इसी प्रकार से हम ये 4 प्रकार के जो कषाय है ना, उसमें कोई भी प्रकार कषाय करते हैं, उसका मतलब हमारी जो आत्मा है, हमारे अंतःकरण जो है वो हुआ चिकना, और उसके ऊपर कार्बन वर्गना की जो डस्ट है ना, पार्टिकल्स, वो चिपक जाते हैं। और फिर जो वो उड़े में आते हैं, उसका टाइम पूरा होता है, टाइम बम की तरह होते हैं, इसका टाइम पूरा होता है तब फिर वो फटते हैं, माने उड़े में आते हैं, और फिर हमको कई प्रकार के दुख भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि कर्म के कारण, लेकिन कर्म को तो हमको दिखते नहीं है, कर्म तो इतने सूक्ष्म है वी कैन नॉट सी, तो हाउ शैल वी रिमूव देम। जो कर्मास, वो कर्मों का भी जो रूट कोज है 4 कषाय, उनको वो तो हमारे अनुभव में आते हैं ना। कभी गुस्सा आ जाता है, कभी मम्मी कोई वो ठपका देती है तो गुस्सा आ जाता है, कभी भाई के बहन, कभी ब्रदर के ऊपर, सिस्टर के ऊपर, नेबर के ऊपर, फ्रेंड के ऊपर एंगर एंग्री हो जाते हैं ना हम लोग। तो और कभी कोई प्रशंसा करता है, इफ समबडी प्रेज अवरसेल्फ देन वी आल्सो बिकम प्राउड, हमको ईगो, अहंकार आता है। कभी कभी चीटिंग करते हैं तो वो समझ में आता है कि हाँ, कभी जेलसी, ईर्ष्या आती है, दूसरे किसी की तारीफ होती है तो हमको जेलसी होती है, महाराज साहब ने उनकी तारीफ की, हमारी नहीं की, तो उसके प्रति जेलसी आती है। तो वो तो समझ में आता है ना कि मुझे एंगर आया, मुझे ईगो आया, मुझे ग्रीड, इच्छा हुई और मुझे जेलसी हुई, तो वो हम समझ सकते हैं। तो उसको दूर करने का प्रयत्न करो, ऐसा भगवान जवाब देते हैं यहाँ पर। व्हाट डू यू वांट टू आस्क? जेलसी कौन सी कषाय में है? जेलसी कौन सी कषाय में, जैसे कौशिक, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो अपने का कषाय तो 4 ही हैं, तो जेलसी उसमें से कौन सी में आएगी? दोनों में आ सकती, ईगो प्लस एंगर। ईगो के कारण हमको होता है कि इसकी प्रशंसा मेरी क्यों नहीं हो, तो हमारा ईगो हर्ट होता है, ईगो और उनके साथ फिर एंगर भी मिल जाता है, तो 2 मिल करके जेलसी उत्पन्न होती है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, तुमको कुछ पूछना था? बस देखो ये बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोग तो शांति से सुनते हैं, पूछते नहीं हैं, पूछना चाहिए। हाँ, और जब कर्म आते हैं हाँ, तो आपका सोल पर एक लेयर होता है कर्म का। हाँ, सोल पर लेयर होता है। लेयर, हाँ हाँ, तो वो इसमें क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? भले जैसे दूध और पानी मिक्स हो जाते हैं ना, जैसे मिल्क एंड वाटर, अथवा आयरन एंड फायर, लोहार होता है भट्टी में, लोहे को डालता है, तपाता है, तो वो जो फायर है वो लोहे के अंदर एकदम घुस जाती है। ऐसे ही आत्मा और कर्म एकदम घुल मिल जाते हैं, एक साथ जॉइंट एकदम हो जाते हैं, उसको कर्म का बंधन हुआ ऐसा कहा जाता है। और कर्म है ना, वो टाइम बम जैसी है। टाइम बम में घड़ी में जितना समय पे वो घड़ी के कांटे लगाए हो, सेट किए होते हैं, उसी समय वो फटता है, इतने आवर्स, इतने मिनट्स और इतने सेकंड पे वो फटता है। इसी प्रकार से जितना हम ज़्यादा तीव्र क्रोध का कषाय करते हैं तो लंबे समय तक चले ऐसे कषाय बनते हैं, और थोड़ा करते हैं तो थोड़े समय में चले ऐसे कर्म होते हैं। तो कुछ समय तक वो कर्म शांत रहते हैं। जैसे वो जमीन में बीज बोते हैं ना, तो तुरंत पौधा नहीं होता है, कुछ समय तक वो जमीन में बीज शांत रहता है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें से अंकुर होते हैं, पौधा होता है, फल पत्ते आते हैं, फिर फूल लगते हैं, फिर फल आते हैं। इसी प्रकार से हम जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं ना, तो वो कर्म कुछ समय के लिए शांत रहते हैं। उसको शास्त्रीय शब्दों में कर्म का अबाधा काल, कर्म हमको बाधा यानी तकलीफ, पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और हमको कर्म चांस देते हैं कि भले चलो अज्ञानता के कारण तुमसे पाप कर्म हो गए, तुमने पहले जमीन कन खा लिया, रात्रि भोजन कर लिया, तब तुमको मालूम नहीं था, लेकिन तुम शिविर में आए और प्रवचन सुने, पता चला कि अरे ये जमीन कन में, इनको जमीन कन कहते हैं, और उसमें एक छोटे से शरीर में भी कितने जीव होते हैं? अनंत आनंद। हाँ, अनेक नहीं, असंख्य नहीं, किंतु अनंत नहीं, अनंत अनंत जीव होते हैं। तो हमारे स्वार्थ के लिए हमने इतने सारे जीवों की हिंसा कर ली, तो ख्याल में आया तो कर्म कहते तो पश्चाताप करो,
हाँ, तुम प्रायश्चित ले लो गुरु महाराज के पास जा करके, तो वो कर्म फिर हमको सजा नहीं करेंगे, वो कर्म खत्म हो सकते हैं, अपने को चांस देते हैं। लेकिन अगर प्रतिक्रमण नहीं किया, प्रायश्चित नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, आलोचना नहीं स्वीकारी, तो फिर वो टाइम होने पर कर्म फटते हैं, उड़े में आते हैं। और फिर तो हम चाहे राजा भी हो ना, आज इंद्र क्यों ना, चक्रवर्ती क्यों ना, उसको भी 7वीं हेल में 7 इन द 7th है, हाँ, कर्मा थ्रो इन, कर्म उनको 7वीं नरक में फेंक देते, डाल देते हैं। हाँ, देवता जो होते हैं ना हेवन में, वो भी सीधा पृथ्वी, पानी और वेजिटेबल बन जाते हैं। हाँ, अगर वहाँ वेजिटेबल वगैरह जंगल, बाग बगीचे, गार्डन में बहुत उनको आसक्ति होती है, तो उनको भी सीधा वेजिटेबल बनना पड़ता है, देवताओं को भी ऐसे कर्म होते हैं। इसीलिए ज्ञानी भगवान कहते हैं यहाँ पर तुम ये कषाय मत करो, कषाय से बचो, तो कर्म बंधन नहीं होंगे, तो तुमको दुख नहीं भुगतने पड़ेंगे। सबका रूट, सभी दुखों का रूट कॉज क्या है? 4 कर्म है, 4 कषाय हैं। वो तो हमारी समझ में आते हैं ना, कर्म दिखता नहीं है, क्योंकि हमारे में हमको गुस्सा आ गया तो वो तो मालूम पड़ता है कि नहीं, हमको ईगा आया, जेलसी आई, वो मालूम पड़ता है। तो उसको तुम दूर करो, और कैसे दूर करना वो भी शायद बताएंगे, देखते हैं आगे। देखो क्या कहते हैं आगे, તે વાસ્તવમાં ઉદયમાં આવેલ પાપ કર્મો નહીં, પણ તે પાપ કર્મને બંધાવનાર કસાય જ તને, માત્ર તને નહીં, સમગ્ર जीव सृष्टि ने हैरान करे छे। तो जगत में जो भी छोटे बड़े अनंत जीव है ना, जो दुखी हो रहे हैं ना, सभी जीवों के सभी दुखों का मूल कारण, रूट कॉज क्या है? क्रोध, मान, माया और लोभ। उसके भी बेटा प्रकार होते हैं भले, मुख्य 4। तो कषायनो मात्र, हाँ, तने वળગેલ पाप कर्म तो तेज करेल कषायनो मात्र પડછાયો છે, प्रतिबिंब छे, પડઘો छे। हमारी बॉडी है और मैंने सूर्य का आया धूप यहाँ पर, लाइट उसकी, तो हमारा शेडो पड़ता है ना, परछाया माने शेडो। तो मूल कारण ये शरीर है, शेडो तो शरीर के कारण शेडो पड़ता है। अगर शरीर यहाँ नहीं होता अथवा कोई वस्तु नहीं होती तो शेडो भी नहीं होता है। तो जो कषाय जो है 4, वो तो शेडो है, इसका नहीं, कर्म जो है ना वो शेडो है। मूल कारण तो ये 4 कषाय हैं, उसको दूर करने का कोशिश करो। ध्वनि ज न होय तो પડઘો ક્યાંથી હોય? हम कुछ बीजापुर के अंदर कहा जाता है ऐसा गोल गुम्बद है, उसमें कुछ भी हम बोलते हैं ना तो उसका रिफ्लेक्शन होता है, પડઘો, इको 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 होता है ना। हाँ, तो इको कब होता है? जब पहले साउंड होता है फिर उसको इको होता है। तो कषाय जो है मूल साउंड है, और कर्म जो है उसका इको स्वरूप है। बिंब न होए तो प्रतिबिंब ज न होए। चांद कभी आकाश में, पूनम का चांद खिला है और नीचे पानी का बर्तन हो तो उसमें उसका प्रतिबिंब पड़ता है ना। अगर ऊपर चांद नहीं होता तो नीचे उसका प्रतिबिंब भी नहीं पड़ता। तो कर्म जो है वो प्रतिबिंब जैसे है, और 4 कषाय जो है वो मूल वस्तु चंद्र का बिंब जैसा है। व्यक्ति के वस्तु न होए तो પડછાયો ज न होए, कषाय न होए तो पाप कर्म न ज होए। ध्वनि खराब કર્યો હોય तो પડઘો પણ खराब ज આવવાનો। वहाँ गुम्बज में जा करके तुम बोलेगे तुम नालायक हो, तो सामने वो बोलेगा तुम नालायक हो। जैसा हम बोलेंगे वैसा हमको सुनने मिलेगा, नहीं? और तुम बोलेगे तुम बहुत अच्छे हो, तो जवाब मिलेगा तुम बहुत अच्छे हो। ऐसा है भाई। हाँ, ये पूरी दुनिया ये गुम्बज है। इसमें जैसा हम बोलेंगे, जैसा हम सोचेंगे भी, और जैसा करेंगे अच्छे या बुरा, वैसा ही हमको प्रतिभाव में जवाब मिलेगा। इसलिए हमेशा ऑलवेज थिंक गुड, स्पीक गुड एंड एक्ट गुड। नेवर थिंक, स्पीक और एक्ट बैड। ओके? हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन पे क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं, देखो। हाँ बोलो, 2 देयर आर 2 क्वेश्चंस इन हिज माइंड। नंबर 1, if this Mukpati here and this one also like this. Now speak. पहले जन्म में जब तभी हमको कर्म नहीं थे, हाँ, तो क्या हम मोक्ष
उसमें सीधा नहीं करें। वेरी गुड। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। आपने देखो इतनी सारी सभा में भी बच्चा डरता नहीं है। फ्रैंकली उसको हिंदी पूरा बोलना नहीं आता है तो भी डरता नहीं है, और फ्रैंकली कैसा अच्छा बोल रहा है। और इसका हिंदी भी आप लोग कितना मीठा मीठा लगता है ना, हाँ एकदम स्वीट लगता है। बोलो सेकंड क्वेश्चन। आपने बोला कि सोचना बैड थॉट्स वो करना और बोलना से भी और बैड है। और आपने बोला और कि हम क्या बोलेंगे तो वो ही हमको आएंगे फिर से हम या तो हम सोचेंगे तो क्यों नहीं उनका दूसरा जन्म नहीं कि इस जन्म में कौन दूसरा हम के बारे में सोचेंगे। थोड़ा क्वेश्चन क्लियर कम हो रहा है। पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। तुम्हारा पहला क्वेश्चन जरा थोड़ा रिपीट करो तो। हाँ, इसने पहले ये पूछा था कि सिट डाउन, वेरी गुड। तो इसने सबसे पहले ये पूछा था कि हम तो पहले कर्म हमारे ऊपर नहीं होंगे ना, हमने कुछ बैड थिंकिंग किया, बैड स्पीकिंग किया, बैड एक्टिंग कुछ किया, तब कर्म बंधे। उससे मतलब सबसे पहले अनंत काल पहले तो हमको कोई कर्म नहीं लगा होगा, तो फिर उस वक्त हमारा मोक्ष क्यों नहीं हो गया। समझ में आया? ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं हुआ मन में? इनके देखो बच्चे में क्वेश्चन हुआ, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, ऐसे सोचना चाहिए और प्रश्न भी पूछने चाहिए। तुमको पूछना है कुछ ना, बाद में पूछना। अभी इसका आंसर दे देवे। इसका आंसर ये है कि हमारी आत्मा अनादि काल से, अनंत जन्मों से पहले से हम जो वो कर्म से युक्त ही है। भूतकाल में अनंत काल पहले भी कभी कोई ऐसा समय नहीं था। भगवान के केवल ज्ञान द्वारा ऐसा दिखा गया है कि वो अनादि काल से हमारी आत्मा और सोल और कर्म मिक्स ही है। ऐसा भूतकाल में पास्ट टाइम में कोई ऐसा समय नहीं है कि जब हमारी सोल वो बिना कर्म की थी। अनादि काल जैसे उदाहरण देते हैं कि वो खान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? माइंड। इन द माइंड देयर इज गोल्ड एंड सोइल, मिट्टी। वो दोनों मिले हुए कब से मिले हैं, वो भी उसका कोई बिगिनिंग नहीं है। वो अनादिकाल से जैसे मिक्स है, उसी तरह हमारी सोल और हमारे कर्म वो अनादिकाल से लगे हुए हैं। और क्या होता है, समझो कोई कर्म उदय में आते हैं, वो खत्म होते जाते हैं, और नए कर्म रिचार्ज होते ही जाते हैं। ये साइकिल चलती है। हाँ, हम तप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारे पुराने कितने कर्म जो हैं वो खत्म होते जाते हैं, लेकिन नए कर्म रिचार्ज भी होते ही रहते हैं निरंतर। 24 घंटे कर्म का बंधन चालू रहता है। वो साइकिल उसका चालू ही रहता है। इसीलिए भूतकाल में कभी ऐसा समय नहीं है कि जब वो कोई भी कर्म नहीं था। लेकिन ये कर्म बंध का हमेशा के लिए हम एंड कर सकते हैं। देयर इज नो बिगिनिंग बट देयर कैन बी एंड ऑफ ऑल कर्मास। सब सारे कर्मों को हम खत्म कर सकते हैं। हाँ? उसके लिए भगवान ने जो मार्ग बताया है उस प्रकार से हम आत्मरमणता करें, मेडिटेशन करें, जप करें, भगवान के नाम स्मरण करें, हमारे चारों कसाय का एकदम उसको खत्म कर देवें। तो फिर हमेशा एक बार अगर आत्मा सर्व कर्मों से रहित हो जाता है ना, फिर कभी कर्म नहीं चिपकते हैं। अब जैसे सिद्ध भगवान लोग गए ना मोक्ष में, जो गए गए वो उनको एक भी कर्म नहीं लगा। अभी सब सारे कर्म उन्होंने खत्म कर दिए अपनी आत्मा में ध्यान करते हुए। अभी उनको कोई कर्म कभी चिपक ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके अंतर में राग द्वेष या एक कसाय है ही नहीं, इसीलिए वो कर्म उनको नहीं चिपक सकते हैं। लेकिन भूतकाल में तो पहले से अनादि काल से वो कर्म के साथ में ही थे। समझ में आया? हाँ। और दूसरा क्वेश्चन तुमने क्या, अच्छा उनको चांस देते हैं, बोलो। देखो बच्चे कैसे अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, रिबॉर्न, हाँ, बाय डेथ होता है, फिर रिबॉर्न होता है, रीबर्थ होता है। तो फिर
एक और सोल होता है तो और वो सेम सोल ही है। एक और हाँ सोल हाँ, सोल तो वही है, बॉडी बदलती जाती है। जैसे तुम देखो अभी आए वाइट एंड वाइट ड्रेस पहन के आए, घर जाएंगे कपड़े पर चेंज कर दोगे, रंगीन कपड़े कलरफुल कपड़े पहनोगे ना, ऐसे जैसे ये कपड़े बदलते हैं लेकिन तुम्हारी बॉडी तो वही की वही है ना। तो उसी प्रकार से नया नया रीबर्थ होता है, जन्म होते रहते हैं। हर एक जन्म में बॉडी तो बदलती रहती है, कभी ह्यूमन बीइंग बने, कभी एनिमल बने, कभी बर्ड बने, कभी इंसेक्ट बने, कभी हेल में गए, कभी हेवन में गए। बॉडी एक क्लोज की जैसी है, बदलती आती है। तो फिर हम्म, इतने पीपल कैसे आए? इतने पीपल कैसे आए? एक पर्सन आया हाँ। तो फिर वो और पीपल नहीं आ सकता है। ये पूछिए दुनिया में इतने सारे पीपल, इतने सारे ह्यूमन बीइंग, इतने सारे मनुष्य, फिर वो कैसे आए? ऐसा एक तुम्हारा क्वेश्चन है ना। हाँ, तो हम सभी के कर्म अलग अलग प्रकार के हैं। समझो हम मनुष्य में से हेवन में चले गए तो हेवन वाले भी फिर मनुष्य भी होते रहते हैं ना। तो ऐसे साइकिल चलता ही रहता है। हम समझो एनिमल बने तो एनिमल में से ह्यूमन बीइंग भी बन सकता है। कोई अच्छे एनिमल भी होते हैं, अच्छे अच्छे बर्ड, एलिफेंट वगैरह समझदार होते हैं, तो फिर वो मनुष्य भी बनते हैं। जैसे एक एलिफेंट था, उसने क्या किया था, वो सिट डाउन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो एक एलिफेंट था, वो फॉरेस्ट में फायर लगा, तो जीवों को बचाने के लिए उसने क्या किया, पहले कहानी तुमने वो किताब पढ़ी है ना, कहानी की पढ़ी है, देखो उन्होंने मेघ कुमार की कहानी पढ़ी हुई है। हाँ, तो फिर उसने अपना पाँव अद्धर रखा ना, वो खरगोश को बचाने के लिए, रैबिट को बचाने के लिए अपना पाँव अद्धर रखा, फिर वो गिर गया, फिर रिबर्थ होके क्या बना, फिर वो एलिफेंट क्या बना, दूसरे जन्म में क्या बना, राजकुमार बना। उसका नाम क्या था, उसके पिताजी का नाम क्या था, सैनिक महाराजा। सैनिक महाराजा भगवान महावीर के जो भक्त थे, उनका बेटा मेघ कुमार बना। तो एलिफेंट में से ह्यूमन बीइंग बन गया ना, ऐसे ह्यूमन बीइंग भी कभी एनिमल बनता है, कभी बर्ड बनता है, कभी इंसेक्ट बनता है, कभी प्लांट्स वगैरह बनता है। हाँ, और अब हम लेकिन सभी कर्मों का नाश करके मोक्ष में कौन जा सकते, ओनली मैन अथवा ह्यूमन बीइंग। Only human being can try to remove all karmas or permanently, or they can achieve final liberation. मोक्ष निर्वाण उसको केवल मनुष्य ही पा सकते हैं, देवता भी नहीं। हेवन वाले में जो देवता रहते हैं ना, वो भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनको भी एक बार तो ह्यूमन बीइंग बनना ही पड़ता है, और ह्यूमन बीइंग बनने के बाद भी अगर वो पाप नहीं करेगा, साधना करेगा, मेडिटेशन वगैरह करेगा, या तो मंक बनेगा, साधु या साधी बन करके, वो जिंदगी में कोई पाप छोटा बड़ा करना नहीं। जो भी साधु साधी होते हैं ना हम लोग, जैसी प्रतिज्ञा होती है जिंदगी में छोटा बड़ा कोई भी पाप मन से भी नहीं, वाणी से भी नहीं, शरीर से भी नहीं करना भी नहीं, किसी से करवाना भी नहीं। कोई करता हो तो उसकी प्रशंसा या अनुमोदना भी करनी नहीं। ऐसा जीवन साधु, ये है राजमार्ग, नेशनल हाईवे ऑफ मोक्ष, लिबरेशन। तो ये मनुष्य जन्म पा करके हमें ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसी भावना रखनी चाहिए कि मैं क्या बनूं, महंत बनूं, साधु या साधी बनूं, और ऐसा अच्छा जीवन जीऊं, कोई पाप न करूं। संसार में तो कितने सारे पाप न चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। हाँ, बहनों को रसोई करना पड़ता है, धंधा व्यवसाय करना पड़ता है, कई प्रकार के 18 पापस्थान करें जो, तो कई प्रकार के पाप न चाहते हुए भी संसार में करने पड़ते हैं। जबकि ये साधु जीवन ऐसा है इसमें कोई पाप करना नहीं पड़ता है, और निरंतर मेडिटेशन, भगवान की भक्ति, तपश्चर्या। आपने एकाशना किया है ना, हाँ बच्चे सभी ने एकाशना किया है। जैसे तप करते हैं, चैंटिंग करते हैं ना नवकार मंत्र का, फिर एक शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं। हाँ, तो ये सब इन सारे से क्या होता है, हमारे कर्म की निर्जरा, कर्म का नाश होता है। और भले अभी इस जन्म में पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना वो बहुत वीक है। उसके लिए स्ट्रांग बॉडी चाहिए, जिसको वज्र, ऋषभ, नाराज, संगयन बोलते हैं। वो अभी महावीर क्षेत्र में है, जहाँ श्रीमंत साईं भगवान वगैरह है ना, वहाँ के जो ह्यूमन बींग्स है ना, उनका एकदम मजबूत स्ट्रांगेस्ट बॉडी होता है। उसके द्वारा वो
कितने महीनों तक खड़े खड़े बिना खाए पिए खड़े खड़े ऐसे मेडिटेशन कर सकते हैं, तो वो सारे कर्मों का क्षय करके वो लिबरेशन को पा सकते हैं। लेकिन इस जन्म में हम भावना पाएंगे, ये श्रीमंत सिंह भगवान है अभी विद्यमान है एट प्रेजेंट, इज इन महावीर क्षेत्र। तो यहाँ इनका रोज चैंटिंग करेंगे, ये भाव से दर्शन करेंगे, इनको प्रेयर करेंगे कि भगवान हमको अगले जन्म के और कहीं नॉट हेवन में भी नहीं जाना, अमेरिका रशिया कहीं नहीं जाना, हमको आपके पास में आना है और आपके हाथ से हमको छोटी उम्र में ये दीक्षा लेनी है और ऐसा मैं मेरी साधना करो कि मैं सारे कर्मों को खत्म करके तो केवल ज्ञान और मोक्ष को पाऊँ। ऐसी प्रार्थना ऐसी भावना रोज करेंगे तो हो सकता है कि अगला जन्म हमारा भगवान के पास में हो और भगवान के हाथ से हमको चारित्र मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आगे बात नहीं, भगवान की बात आज ये भी इधर सबको सुनना पड़ेगा। अभी बच्चों की बात, ये बच्चे भी भगवान है तो आज भगवान सब लोग बोलते हैं ना हमने कभी भगवान देखे ही नहीं, लेकिन लाइव है आज। हाँ। तो इनको अंतर से वंदन करने चाहिए क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे भगवान आज हैं। चलो विदय से। वीरेंद्र भाई, हाँ चलो बोलो। चलो 1 मिनट, हाँ जोर से बोलना है, जरा क्वेश्चन जरा सब सुन सके। नजदीक बोलो, जोर से बोलो। तुम जो फोर्स करे ते तुमको धर्म करना है तो फिर वो बैड काउंटेड होता है तो फिर वो धर्म नॉट काउंटेड होता है। क्लियर नहीं हुआ क्या? ને કર્મ બીજો કોઈ બાકી કર્મ કરેલા ફોર્સ કરે તો ખરાબ ચોજે કે સારું? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर कोई हमारे पेरेंट्स अगर फोर्स करके हमको धर्म करवाते हैं तो वो अच्छा है कि नहीं है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं तुमको सामने क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हाँ, does anybody forces you to do paushad or to come in shivir to do dharma? वो कर्म बोल रहे हैं, धर्म नहीं कर्म बोलता है। कर्म फिर क्या? कर्म કર્મ કરેલા કોઈ ફોર્સ કરે તો સારો જોવા દે કે ખરાબ? धर्म करेगा ना। કર્મ કરેલા મુકે કંકુ નાય ખાણો તો भी कोई फोर्स करे। अच्छा, तो वो तो अच्छा नहीं है, उनको समझना चाहिए। खोटा खोटा कर्म करना हाँ, तो हमको मक्कम रहना चाहिए, वो तो उनको कर्म बंधेगा। अगर कोई तुमको पाप कर्म बैड कर्म करने के लिए फोर्स करता है ना तो उनको कर्म बंधन होगा और उसकी पनिशमेंट कर्म उनको भी देंगे। हमें उनको प्रेम से समझाना चाहिए कि हमने शिविर में ऐसा ऐसा सुना है, जमीन कर्म वगैरह नहीं खाना चाहिए, रात्रि भोजन नाइट ईटिंग नहीं करना चाहिए नाइट को, वो समझाना चाहिए उनको। फिर वो नहीं करता है तो और हम खाते हैं वो बहुत फोर्स करता है तो बैड कर्म कम होते हैं। मानो कि माँ बाप पेरेंट्स वगैरह जो फोर्स करते हैं और हमारी तो इच्छा नहीं है कंदमूल खाने की या नाइट भोजन रात्रि भोजन करने की, लेकिन फिर भी पेरेंट्स का तो कभी कभी मानना पड़ता है और नहीं मानते तो वो मेथी पाक खिलाते हैं, पनिशमेंट देते हैं। तो कभी मजबूरी से हमको वो कोई ऐसा ज़मीन कन खाना या रात्रि भोजन करने का पाप करना पड़ता है, तो फिर हमारे पेट का कर्म बंधेंगे लिमिट में, बहुत कम बंधेंगे, ज़्यादा नहीं बंधेंगे। हमको का पश्चाताप होता है ना तो फिर वो पाप कर्म हम पाप करके खुशी मनाते हैं, राजी होते हैं ना तो वो चिकने पाप कर बन जाते हैं। और अगर पाप करते करते भी मजबूरी से पाप कोई करना पड़ता है उसके लिए हृदय में पश्चाताप होता है तो वो जो कर्म है ना वो बहुत ढीले बनते हैं। फिर उसको हम पश्चाताप करते हैं, गुरु महाराज के पास आकर के उसको बोल लेते हैं, गुरु महाराज देखो हमको ऐसा पाप हमसे हो गया, हमको मजबूरी में करना पड़ा, तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ, भगवान के पास भी उसकी क्षमा याचना करो। तो वो पाप कर्म क्या होता है एकदम ढीला हो जाता है अथवा ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन जिसने फोर्स किया उनका पाप कर्म बंधेगा फिर, लेकिन तुम छूट सकोगे। हाँ, लेकिन कभी पाप करके खुशी नहीं मनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडेज क्वेश्चन आंसर प्रवचन सेशन। दो क्वेश्चन है। पहला He also has 2 questions to ask. पहला है अभी सिमंदर स्वामी महावीर क्षेत्र में हाँ आए अभी विचरते हैं। वो तीर्थंकर है कि नहीं? तीर्थंकर है, केवल ज्ञान उनको हो चुका है।
प्रश्न आया कि महावीर क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान श्रीमंत स्वामी जो विचर रहे हैं वो अभी तीर्थंकर के रूप में है। हाँ, वो तीर्थंकर के रूप में, उनको केवल ज्ञान हो चुका है। उनका जन्म कब हुआ था? 17वें कुंथनाथ और 18वें अरनाथ भगवान के समय में उनका जन्म हुआ था। और उनकी दीक्षा कब हुई थी? कब हुई थी दीक्षा? नमी और नेमिनाथ, 21वें नमीनाथ भगवान, 22 के नेमिनाथ भगवान, उनके बीच के समय में उन्होंने दीक्षा ली थी। और केवल ज्ञान कब हुआ था? करीब 1000 साल के बाद केवल ज्ञान भी हो गया है। अभी केवल ज्ञानी के रूप में विचरते हैं वहाँ पर। अभी कितना साल वो जिंदा रहेंगे? मोक्ष में कब जाएंगे? अभी जो दूसरे 24 तीर्थंकर होंगे ना, उसमें 8वें और 9वें तीर्थंकर के बीच का जो समय होगा ना, तब वो मोक्ष में होगा, आयु समाप्त होगी। इतनी लंबी आयु उनकी होती है, 84 लाख पूर्व की आयु, बहुत लंबी आयु होती है। हाँ, महावीर क्षेत्र में हैं। तो हम अभी ऐसी प्रार्थना रोज करेंगे, ऐसी भावना करेंगे तो हमारा अगला जन्म उनके पास हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। दूसरा नंबर 2, इसका नाम है ईशान। अभी जो बोल रहा है ईशान नाम है। ईशान कोने में भगवान शिवमंदिर स्वामी, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में ईशान कौन है? उस दिशा में भगवान अभी विचरते हैं। और इसका नाम था विहान। दोनों सगे भाई हैं। देखो ये 4 बच्चे, 8 बच्चे जो अभी पोषण में हैं, उनमें से ये 4 बच्चे, एक का नाम अभी जो ईशान, दूसरा ये विहान, ये आर्यन, आरव और वो आर्यन, ये चारों सगे भाई। अच्छा, 2 सगे भाई हैं और चारों सुश्रावक्षी, पीयूष भाई, वसंती लखमसी सावला परिवार के चारों बच्चे हैं जो हमेशा नियमित शिविर वगैरह में भी आते हैं। और ये शिविर का जो प्रारंभ हुआ जिसमें आज करीब 40 बच्चे आते हैं, लेकिन शुरुआत में ये परिवार के 4 या 6 और भी 6 बच्चे और उनके साथ उनके पेरेंट्स, उनके पापा भी आते थे और उनके ग्रैंडफादर मदर भी आते थे। 3-4 दिन तक रोज के 1.5-2 घंटे वो बैठते थे, सत्संग करते थे, प्रश्न पूछते थे। इसी से हमको भावना हुई कि चलो अभी बच्चों की इतनी जिज्ञासा है तो क्यों न फिर और बच्चों को भी लाभ मिले। और इसी भावना से ये सप्ताह में 3 बार शनि, रवि और मंगल तो एक शिविर का प्रारंभ हुआ। और उसमें भी फर्स्ट टाइम ये बच्चों ने औषध किया है, 8 बच्चों ने। तो सभी की खूब खूब अनुमोदना करते हैं। अभी जब तक यहाँ पर होगे तब तक करोगे ना, सप्ताह में 1 बार औषध, कभी सैटरडे कभी संडे। हाँ, वो करेंगे क्योंकि अभी उनको गिफ्ट मिलने वाला है। हाँ, भाग्यशाली की ओर से, संघ की ओर से ये गिफ्ट मिलेगी। वो बच्चे अभी दिखा रहे हैं, हमारे वीरेंद्र जैन दिखा रहे हैं। ये क्या है बच्चे लोग? चेस 2 in 1, 2 एक में 2 हैं। एक चेस भी है और दूसरा स्नेक एंड लैडर, जिसको बोलते हैं सांप और सीढ़ी। हाँ, वो 2 है, 2 in 1, वो आप सभी को दिया जाएगा। और जो सगे भाई है तो एक ही घर में 2 वो चीज़ रहे, इसके लिए कुछ ऑप्शन दूसरा भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से देखो ये संसार जो है ना, पूरा वर्ल्ड यूनिवर्स, वो भी सांप और सीढ़ी। और साथ में दूसरे एक सदग्रस्त की ओर से, आप जब बच्चे ऊपर मंदिर में एकदम भाव से चैत्यवन वगैरह कर रहे थे ना, तो वहाँ पूजा करने के लिए आए हुए, उनका नाम अभी मैं लेता हूँ, वो भी अच्छे बड़े सदग्रस्त हैं, रोज पूजा करते हैं। तो उन्होंने तुरंत वीरेंद्र भाई को 500 रुपये दिए कि बच्चों को हमारी ओर से प्रभावना कर देना। कितना अच्छा, कितना अच्छा, કેટલું સારું, કેટલું સારું, કેટલો ખાશો, કેટલો ખાશો, GOOD अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना वारंवार, अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना वारंवार। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 देवलोक और 26 देवलोक में हाँ, देखो आप लोग बच्चों को मातृभाषा सब गुजराती वगैरह और राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं सिखाते हैं, इसलिए कितनी दिक्कत पड़ रही है उनको अपना भाव व्यक्त करने में। इसलिए पेरेंट्स को हमको सबको कहना है कि अपने बच्चों को मातृभाषा और राष्ट्रभाषा ये दोनों
अवश्य में उनको जरूर सिखाइए, या स्वयं आप समय निकाल करके सिखाइए। आपको समय नहीं हो तो जैसे दूसरे सब्जेक्ट के लिए आप ट्यूशन रखते हैं, इसी प्रकार से अपनी मातृभाषा मदर टंग, हाँ मोटे गुजराती या मारवाड़ी जो भी हो, और साथ में राष्ट्रभाषा है हिंदी नेशनल लैंग्वेज, वो सभी बच्चों को आए, उसके लिए सभी पेरेंट्स को ये व्यवस्था करनी है। देखो बेचारा बच्चे को भाव बहुत है पूछने के, ये क्लीन एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो रही है। बोलो, यू कैन आस्क इन इंग्लिश ऑल्सो। तो 20 और 26 देवलोक में देव भगवान का दर्शन कर सकते हैं वो सब? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, सिट डाउन। इसने पूछा है कि देवलोक जो 26, वो भी मालूम है इसको, वैमानिक देवलोक, हाँ वैमानिक देवलोक 26 है, 12 देवलोक, नवग्रह, पंच अनुत्तर, दूसरे भी देवलोक होते हैं, भवनपति, वेंतर, ज्योतिषी वगैरह। तो वहाँ जो देव देवियाँ होती हैं उनको भगवान का दर्शन रोज करने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो, मिलता है कि नहीं मिलता है? देवलोकों के अंदर भी शाश्वत जिनालय, परमानेंट टेम्पल्स होते हैं, जैन मंदिर बड़े बड़े विशाल होते हैं, भगवान बहुत बड़े बड़े रत्न वगैरह के भगवान बने हुए जिन प्रतिमाएं होती है, परमानेंट है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, उसका कभी नाश भी नहीं होगा। तो जो देवताओं में भी दो मुख्य प्रकार हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। जैसे मनुष्यों में भी कुछ आस्तिक हैं, कुछ नास्तिक हैं, कोई देव धर्म को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन तुम लोग शिविर में आए, तुम लोगों ने ये औषध किया, दूसरे बच्चे नहीं कर पाए, शिविर में आए फिर भी नहीं कर पाए। और ये देखो आदर्श तो ब्राह्मण है, जैन नहीं है, हाँ तो फिर भी वो भी करता है ना, ब्राह्मण उसने औषध किया है, उसके पास वाइट एंड वाइट ड्रेस नहीं था तो फिर मैंने दिला दिया उसको। तो ऐसे देवताओं में भी दोनों प्रकार होते हैं, कोई धर्म प्रेमी होते हैं, सम्यक दृष्टि भी होते हैं, और नास्तिक माने मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं तो वो शाश्वत जिनालयों में भगवान के दर्शन वगैरह करते हैं। इतना ही नहीं, वो तो देवताओं में कितनी शक्ति होती है, चुटकी बजाओ इतने समय में तो लाखों कोस का वो डिस्टेंस को जा सकते हैं। इसीलिए जब भगवान की देशना होती है, दिन में 2 टाइम होती है, 3-3 घंटे होती है। तो श्रीमंत स्वामी वगैरह 20 तीर्थंकर हैं 5 महावीर में, तो उनकी देशना सुनने के लिए वो देवता, सम्यक दृष्टि देवता हो वो आते हैं, भगवान का समर्पण भी वही देवता ही बनाते हैं, करवाते हैं, और भगवान की देशना साक्षात सुनते हैं दर्शन करते हुए। तो पर आपने बोला था कि 26 देवलोक में सिर्फ सोते हैं, तो ये सब पढ़ सकते हैं? अच्छा, वो सोने वाले देव, हाँ हाँ, अच्छी बात, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 12 देवलोक तक के जो देव है ना, वो तो भगवान की देशना सुनने के लिए, भगवान के कल्याण की उज्जवनी करने के लिए धरती ऊपर आते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो 9 ग्रह और उसके साथ उससे ऊपर 5 देवलोक, 9 और 5 14 जो हैं, तो उनका आचार वो कल्पातीत, कल्प यानी आचार, ये कल्पोपन्न 12 देवलोक क्या है ना, वो कल्पयुक्त, कल्प माने आचार, भगवान की भक्ति करने के लिए, कल्याणकों की उज्जवनी करने के लिए, भगवान की देशना सुनने के लिए धरती ऊपर आने का उनका आचार होता है। लेकिन जो बहुत ऊपर के देवलोक हैं, नवग्रह और पंचनुत्तर, वो कल्पातीत कहे जाते हैं, तो वो नीचे नहीं आते हैं, लेकिन वो वहाँ रहे अपने निर्मल अवधि ज्ञान से, हाँ वो देख सकते हैं, नीचे का भगवान का दर्शन भी कर सकते हैं, और वहाँ रहे मन से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आप लोग अभी खड़े होकर के स्पीकिंग बोलते हो, क्वेश्चन पूछते हो, लेकिन वो वहाँ रहे उसको बोलना नहीं पड़ता है, मन से ही क्वेश्चन सोचते हैं। और भगवान तो केवल ज्ञान से सब जानते हैं, तो भगवान भी वो मन के द्वारा, मनोवर्गणा के पुत्रों के द्वारा उनको जो आंसर देते हैं ना, वो वहाँ रहे हुए भी असंख्य करोड़ जन दूर हैं, फिर भी निर्मल अवधि ज्ञान के द्वारा भगवान ने जो मन से उत्तर दिया है उसको वो लोग समझ जाते हैं, इसलिए उनको नीचे आना नहीं पड़ता। ऐसा शाश्वत उनका ऐसा आचार है। और दूसरा भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का तो एंड है, हाँ बोलो। तो जैसे अभी एक का पूरा नहीं है, दूसरे की फिंगर रेस हो जाती है, ऐसी बात है। ऐसे तुम लोग हैं ना, सप्ताह में 1 बार आया करो, सुबह के व्याख्यान में। रोज को आपको टाइम नहीं होगा, रविवार को या जब भी मौका मिले ना आओ, और तुम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो सवाल को सबको बहुत समझने जानने मिलेगा। ये लोग तो सब मौनी बाबा है, कोई पूछता नहीं है। बोलो। तो जब सपोज मैं अभी जैन हूँ, तो मैं मर जाता हूँ, खड़े होकर पूछो और जोर से बोलना है।
बोलो क्या क्वेश्चन है मैं तुम्हारा? अभी गई हूँ, हाँ। सपोज मैं मर जाता हूँ और मैं देवलोक में जाता हूँ, पर मैं एक नॉन जैन देवलोक बनूँ तो वो हो सकता है? अच्छा क्वेश्चन किया। देखो देखो अभी मैं जैन हूँ और मैं ये धर्म का पालन यथाशक्ति कुछ करता हूँ, हाँ, और हजारों धर्म के प्रभाव से मैं मर करके देवलोक में देव बनूँ, लेकिन नॉन जैन देवलोक में जैन और नॉन जैन देवलोक स्वर्ग तो होते हैं, उसमें जो रहते हैं ना जो देव देवियाँ, उसमें कुछ जैन कुछ अजैन, यानी कुछ आस्तिक और कुछ नास्तिक ऐसे दोनों होते हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों होते हैं। तो जैसे संस्कार इस जन्म में होंगे ना प्राय करके वैसा ही जन्म मिलता है। वो संस्कार हमारे साथ में चलते हैं, अच्छे या बुरे जो भी संस्कार होंगे आस्तिक का के या नास्तिक का के, तो वो हमारे साथ में चलते हैं। तो वहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। चलो आज टाइम होने जा रहा है, जल्दी बोलो। अभी ये बच्चों ये चारे जो भाई है ना यहाँ पर आएंगे और 24 तीर्थंकर भगवान की इंग्लिश में स्तुतियाँ बोलेंगे। इनको सिखाया गया है। आज मंदिर में भी चैत्र के समय में भी ये चारों भाई मिल करके 24 तीर्थंकर की स्तुतियाँ बोली थी। और वो इस किताब में प्रभु साथे प्रीत, इस किताब में पेज नंबर 328 328वें पेज पर ये 24 तीर्थंकर की इंग्लिश में स्तुतियाँ हैं। वो चारों भाई यहाँ आकर के बोलेंगे। हाँ, तो लेकिन अभी ऐसा करो एक बार वो 24 स्तुति बोल लो क्योंकि टाइम हो जाएगा, 10:15 बजे है। तो तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर बाद में अभी देंगे। इधर आ जाओ बेटा। चलो फिर भी बहुत जिज्ञासा है, लास्ट एक क्वेश्चन पूछ लो। हाँ, बाकी के 5 प्रश्नों के जवाब नेक्स्ट टाइम अभी देंगे। बोलो। समोसरण कौन बनाता है? वेरी गुड क्वेश्चन। समवस्रण कौन बनाता है? देव बनाते हैं। देव, कुछ वेंकर देव, कुछ होमवंती ऐसे मिल करके देव मिल करके बनाते हैं, लेकिन वो भी भगवान के प्रभाव से बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते। आ जाओ, इधर आ जाओ। आ जाओ। चलो बच्चे अभी क्वेश्चन बाद में पूछना, अभी जरा आ जाओ। हाँ, जिनके पास ये किताब है, जिनके पास ये प्रभु के साथ प्रीत किताब है, पेज नंबर 328 निकालो। देखो साध्वी जी भगवान ने स्तुतियाँ बनाई है, कितनी अच्छी स्तुतियाँ हैं। साध्वी जी संस्कार निधि श्री जी साध्वी जी, उन्होंने ये स्तुतियाँ बनाई हैं और ये बोलेंगे। जरा जोर से बोलना, अच्छी तरह बोलना। देखो तीन बच्चे आ रहे हैं, 3 बच्चे आ रहे हैं, एक बच्चा बोलो, जोर से बोलना। स्टार्ट। Don't touch. Never forget naughty son. You are Father Super One. Sri Ajitnath is your name. What to say for your fame? You are winner, best of all. I am missing every ball. गणपति की बोलते हैं। Save me, Sambhavnath Dada. Show me true way, oh Dada. How to walk in blackish night. Give me your Super light. That one is my golden day. Abhinandan Swami I pray. Tell me, oh God, where you stay. How to come, you show me way. You are in my every thought. Let me lead life as you taught. Sumati Nath gave wisdom nice, so that I fall Never twice. I like you most Supreme Dada. Your face is rosy red. What a Prabhu Swami so high. You can forget. How can I? I am candle, you are light. I am high and you are light. I am heart and beat you are. Swashnath, not you are far. Come, shining soon. See My Chandra Prabhuji soon. Why you look so dull and pale? Sea of sorrow you can sail. I like lovely number 9. Suvarinath Swami is mine. Forget, oh God, my mistake. My burden you have to take. Burning world is
Too much hot. Burning world is too much hot. Many are from burning flame, eternal same as name. Night is dark and journey long. Shreyans not I sing your song. Singing makes my journey sweet. Reserve me a Mukti seat. You are the ocean of mercy. Can he lovely master key? Can you see not on my door? Vasubhujya Swami, I adore. Flowing water I have seen. Make my heart so pure and clean. Wash my dirty mind. Remove dust of every kind. So many stars are in the sky. Counting even contact. Ocean I cannot measure. Such is Anantanath's pleasure. Dharmanatha, heal my matter. You are the teacher of Dharma. Come on, my Lord, Almighty, my King, waiting for you eagerly. Achira Devi's lovely son, give me peace and compassion. In this world, my own is none. Shanti Nath is only one. I am baby innocent. Kuntu Nati excellent. I am ocean, I am drop. I at bottom, you at top. I am crying, burning gate. I cannot see my image. Fear not my ambition. I get final liberation. बोलो. Stop my birth and death cycle. Show my Nadi miracle. Let me always stay with you. Leave this old home, come to new. Chuk 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 chuk, running train. World is full of sorrow, pain. Open for me, Mukti gate. Shri Muniswaran Swami great. I will pray for worldly wealth, not for name or body health. Naminath, never lose I faith. Name on lips till final breath. In my heart you own a place that is like a special case. I'm like much going face. Bless me, Lord, with supreme grace. Come on, not the less. Bless you, him with forgiveness. Oh, Parshvanath. Give me patience. Cannot move me disturbance. Kingdom, palace, ornament. You have but no attachment. Let you follow my way. Give me little what you have. कितना अच्छा, कितना अच्छा. अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार. अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार. अनुमोदना बारंबार. Do you want to ask any question? देखो, ये 4 बच्चों में से अभी 2 बच्चे जो है अभी बड़ौदा जाने वाले हैं. पर्यूषण तक तो वहीं होंगे. इसीलिए उनको अभी कोई प्रश्न पूछना है तो जो बड़ौदा जाने वाले हैं उनको कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो. ओके, हो गया तुम दोनों का. क्वेश्चन लेके आएंगे बाद में. हाँ, फिर वहाँ से जब आओ नए क्वेश्चन ले आना. हाँ हाँ, हाँ, इनके पूछना है. हाँ, क्या पूछने का है तेरे को? करा रहे. वो हाथ में ले ले. रियो, RIO, रियो हाँ. इसका नाम. पूछने का था कि महावीर स्वामी भगवान का कौन सा समुदाय है? ओ इसको पूछना है भगवान महावीर स्वामी का कौन सा समुदाय है. आत्मगच्छ. आत्मा समुदाय, आत्मगच्छ. क्यों? अथवा तीर्थंकर समुदाय जो बोलो. अच्छा क्वेश्चन किया कि हमारे समुदाय कौन सा. अचल गज, चपा गज, खड़तर गज, पाचल गज, तेरावासी, स्थानकवासी, 3 थोई, 4 थोई, कौन सा समुदाय उनका है. श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापति, स्थानकवासी. ऐसे कौन सा समुदाय में है भगवान.
महावीर स्वामी सब इनसे परे आत्मगत कहो, तीर्थंकर समुदाय कहो, जो कहो सो। एक क्वेश्चन है पूछो। तो बुद्ध- उसको भी ऐसे हाथ में रखो, ऐसे ये है ना दोनों हाथ। यस। कुछ लोग जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं हाँ, कुछ लोग जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं या फिर दूसरा इस्लाम, क्रिश्चियन वगैरह, हाँ वो देवलोक बन सकते हैं। बन सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो क्या पूछा उसने, जो जैन धर्म में नहीं जन्मे हुए हैं, समझो कोई बौद्ध धर्म में जन्मा हुआ है, इसका इस्लाम में मुस्लिम धर्म को पाता है, कोई क्रिश्चियन में, तो वो लोग भी क्या देवलोक में कभी जा सकते हैं? क्या आंसर क्या है? दे ऑल्सो कैन बिकम, दे ऑल्सो कैन गो इन हेवन ऑल्सो। तो उसका बुद्धिस्ट टेम्पल वहाँ पर होंगे कि नहीं? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। टेक डाउन। हाँ देखो, 500 और आए पर भावना बच्चों को देने के लिए 500 और आए। दूसरे भी एक सदस्य की ओर से बच्चों के लिए 500 रुपया भी शिविर अपना प्रभावना के रूप में हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना। तो क्या प्रश्न? हाँ देखो, मनुष्य तो क्या, एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो कैन गो इन हेवन आफ्टर देयर डेथ। पशु या एनिमल या बर्ड के रूप में नहीं जा सकते, वहाँ कोई एनिमल और बर्ड नहीं होता है। लेकिन मनुष्य जन्म में किसी को अपना पूर्व बर्थ का ख्याल में आ गया, पशुओं को, एनिमल को भी पूर्व जन्म ख्याल आ सकता है, और वो फिर धर्म करें, माने कोई हिंसा नहीं करें जीवों की, और जो पाप हो गए उनका पश्चाताप करें वगैरह, तो एनिमल बर्ड्स भी आफ्टर हिज डेथ दे कैन ऑल्सो गो इन हेवन। तो फिर जैसे चंद्र कौशिक नाग, बरोबर ना, कहाँ गया वो, कौन से हेवन में गया? हाँ 8th, जिसका नाम है सहस्रार देवलोक। ऐसे और कई उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। दोनों की तरफ से भी 500। हाँ, ताराबेन और प्रवीणाबेन, उनकी ओर से भी बच्चों को 500 रुपये। अभी खाली नहीं करें ना, बाकी आगे शनिवार करना है सबको। अभी बरस पड़ेंगे, फिर अगले शनिवार या जब भी करेंगे तब फिर को ठम गोपाल, वो नहीं होगा ना चीज़। हाँ, भाव अपना आ जाता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन और भी बच्चे को आने दो। अभी तो 8 बच्चे हैं, अभी ये सब दो देख करके सुन करके दूसरों की भी भावना जगेगी। हाँ, कि आपके बच्चों पे बोलना, देख देख बेटा तू नहीं गया और वो बेटा गए, तो उनको कितना लाभ फायदा हो गया। चलो, तो समझ में आया? एनिमल्स ऑल्सो, ठीक है। हाँ चलो, और आगे कोई क्वेश्चन? तो वो लोग क्या करते हैं वहाँ, मानो एक बार जमा करो बाद में लास्ट। हाँ, वहाँ देवलोक में बुद्धिस्ट का मंदिर वगैरह है कि नहीं, वो तो भगवान जाने। लेकिन अगर उनको अपने ज्ञान में ख्याल में आए कि मैं अगले जन्म में बौद्ध था, तो वो धरती पे आकर के जो बौद्ध के टेम्पल वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर भी वो जा सकते हैं। जैसे उनके संस्कार, जैसी उनकी इच्छा, ऐसे वो कर सकते हैं। नाउ आदर्श, तुम मौन हो आज, तुमको कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ, अच्छी बात है। चलो, तो करें पूरा सर्वमंगल। चलो, अभी खड़े हो जाइए। हाँ, अभी नहीं, प्रार्थना करेंगे पहले। सबका ले रहे ना, पब्लिक का। हाँ, चलो बैठ जाओ, प्रार्थना करवाते हैं अभी। जैसे मैं बोलूँ आप रिपीट करना। हाँ, इस जगत के जितने अणु परमाणु एटम्स वगैरह हैं सब, हाँ, पवित्र हो जाए। बोलेगा। हाँ ठीक है। चलो, अभी हमारे राजेंद्र भाई, हाँ वो भी बहुत उत्साही है, उनका कंठ भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे इनको स्तवन वगैरह भी आते हैं। तो वो आज के प्रसंग के अनुरूप कुछ गौली बोलना चाहते हैं, उनको भी जरा ध्यान से प्रेम से सुनना। अच्छा, तो अभी क्या करना है? ऐसे ऐसे ही बोलना है, ऐसे अनुमोदना करना चाहते हैं। हाँ, आगम दिवाकर प्रसन्न स्मृति आचार्य भगवान महोदय सागर सुशील मास्टर ने कोटि कोटि वंदन। साहेब सुख तमाशो देव गुरु प्रसाद। सभी मुनिराज भगवंतों ने कोटि कोटि वंदन। साहेब सुख तमा सभी तपस्वी आत्माओं ने संतप्त साता पुरुष मानव से सभी सातामाशो। बोलो देव गुरु प्रसाद। સવારે આવ્યો ત્યારે આ દ્રશ્ય જોયું, મને લાગ્યું આચાર્ય સાહેબને 3 ઠાણા હતા, ને તે ઠાણા કેમ થઈ? 3 નતા 4 હતા। 4
બરોબર. આ બે ઠાણા કેમ થઈ ગયા? ખરેખર પછી મેં પિયુષભાઈને વાત કરી, આજે લગભગ 50 નહીં પણ 45 વર્ષ પછી આ રિપીટ થાય છે. 45 વર્ષ પહેલા મને લાગે 40 વર્ષ કે 45 વર્ષ પહેલા સર્વોદય સાગરજી માટેનું ચોમાસું હતું. ત્યારે બસ અમે લોકો આટલા નાના બાળકો હતા અને એ વખતે કૌશલ કરાવ્યું હતું. અને ત્યાર પછી આચાર્ય સાહેબનું ચોમાસું હતું પણ ત્યારે કૌશલ બહુ નતા થયા. અને વળી પાછું આ દ્રશ્ય આજે સર્જાયું છે. અને જેમ રાજેશભાઈએ કીધું કે આપણે છેલ્લા 4-5 દિવસથી સાહેબ ભગવાનની આકૃતિ આપણે કરીએ છીએ, પધારો પધારો, કેમ નથી આવતા, કેમ નથી આવતા. પણ આ બચ્ચાના રૂપમાં આજે ભગવાન ખરેખર સાક્ષાત આપણી સામે પધાર્યા છે. તો આપણી એવું લાગે છે કે આપણી જે વિનંતીઓ છે, આપણી જે કાકરીઓ છે આજે પરિપૂર્ણ થઈ છે એવું આજે ખરેખર દ્રશ્ય. અને ખરેખર તો પિયુષભાઈ, પૃથ્વીભાઈ, એમના પરિવારજનો અને જે બીજા પણ બાળકો છે એમના માતા પિતાઓને ખૂબ ખૂબ આપણે અનુમોદના કરીએ અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ કે જેમણે આ બાળકોને અત્યારે મોકલાવ્યા. અને આ બાળકોની જે ક્વેશ્ચન આન્સરની જે આપણે જોઈ, હા, બાળકો જે સ્તુતિઓ બોલી મોઢે 24 ભગવાનની અંગ્રેજીમાં આટલા શોર્ટ પીરિયડમાં આ લોકોએ કંઠસ્થ કરી લીધી. પ્લસ એ લોકોના જે ક્વેશ્ચન આન્સર વિચારવાની જે શક્તિ હતી ને એ તો અમારામાં તો ત્યારે હતી પણ નહીં. આટલા આ જે લેવલના જે ક્વેશ્ચનો વિચારે છે, પૂછે છે, એ તો ખરેખર આપણે કહીએ ને કે કઈ સંસ્થાઓ એવા પડ્યા છે માતા પિતામાંથી એમના કે અને ગુરુ પાસે એવું શીખ્યું છે કે આવા ક્વેશ્ચનો એમના મનમાં આવે છે. એટલે ખરેખર આપણે આ સૌની ખૂબ અનુમોદના કરીએ. જેમણે પણ બાળકોની અનુમોદના કરવી હોય, જે પણ રીતે કરવી હોય તે નામો અહીંયા વિરેન્દ્રભાઈને લખાવી દેજો. જે પણ તો પછી આપણે એક સાથે નામો જાહેર કરી અને પછી કદાચ શિબિરમાં બાળકોને આપણે એ આપીશું. રંજનભાઈ, મુખ્ય આચાર્ય સાહેબ અને આપણે ગુરુ ગોપાલ એ પ્રેરણાને સખાઈએ પર હા હા, સાહેબ તો કહું છું જ્યારથી પધાર્યા છે ત્યારથી હવે સાહેબના શબ્દોમાં કહું 4,500 અક્ષરનો શબ્દ ખાલી જગ્યા પૂરો. પહેલો અક્ષર જી. શેના માટે પધારે છે સાહેબ? તમે નહીં બધું આપણા સંઘનો અને આપણા સંઘના બધા શ્રાવક શ્રાવિકાઓનો શું કરવા સાહેબ એટલે પધાર્યા છે? જીર્ણોદ્ધાર. તો ખરેખર દેરાસરો અને ઉપાસનો તો જીર્ણોદ્ધાર થાય પણ આપણા સર્વ શિષ્યવૃંદ સંઘવાસીઓનો હૃદયનો આ જીર્ણોદ્ધાર કતાર કરવા માટે સાહેબ પધાર્યા છે. આપણે ખૂબ ખૂબ એનો લાભ લઈએ. આગમ દિવાકર પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહોદય સાગરસુરીશ્વરને કોટી કોટી વંદન. ધર્મલાભ. બીજા ધર્મગુરુ સર્વેને કોટી કોટી વંદન. આજે આ બાળકોને જોઈને મને હમણાં જ મનમાં એક ગીત યાદ આવી ગયું. તો એક જ કડી છે. બચ્ચે મન કે સચ્ચે सारी जग की आंख के तारे है वो नन्हे फूल जो है भगवान को लगते प्यारे बच्चे मन के सच्चे. बस ऐसे याद आ बच्चा है महान जग में बच्चा है महान. गीता उसमें, बाइबल उसमें, उसी में है कुरान. बोलो बच्चा है महान जग में बच्चा है महान. बोलो आदर्श क्या क्वेश्चन पूछना है? अगर जैन है तो क्या जैन बन सकते हैं? चौक्कस बन सकते हैं. जन्म से जैसे ये अभी ब्राह्मण है पूछने वाला आदर्श कुमार, हमारे वॉचमैन का लड़का है, बेटा है. हाँ, लेकिन चौक्कस इसने अगले जन्म में जैन धर्म का भी कुछ अच्छा पालन किया होगा. तो आज हर नियमित रूप से शिविर में आने का भाव होता है. इसके सिवाय के समय में भी वो आता है, सीखता है, अपनी बेसी बहन को भी लाता है. तो वो पूछ रहा है कि अगर कोई अजैन है, नॉन जैन मने जन्म से, तो वो जैन बन सकता है इसी जन्म में कि अगले जन्म के लिए पूछ रहा है? बन सकता है. वेरी गुड क्वेश्चन. हाँ, जैन धर्म वास्तव में तो जन्म से तो ठीक है, नहीं तो कर्म से आदमी बनता है महान या निम्न. तो ऐसे हाँ, ऐसे कोई इंद्र बुद्धि गौतम ब्राह्मण थे, गौतम स्वामी है ना,
वो ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए थे। ऐसे दूसरे भी विद्वान 11 ब्राह्मण पंडित थे, सब ब्राह्मण थे। भगवान महावीर स्वामी के मुख्य जो 11 शिष्य थे ना, वो सब ब्राह्मण थे। जैसे तुम भी ब्राह्मण हो ना, वो यज्ञ आदि करवाते थे। उन सभी के मन में एक एक क्वेश्चन था, किसी को आत्मा के विषय में, किसी को परलोक के विषय में, किसी को कर्म के विषय में, किसी को स्वर्ग के विषय में, किसी को नरक हेल के विषय में। भगवान केवल सबका जो जानते थे और सबको ऐसा उत्तर, अच्छा उत्तर दिया कि सब ने भगवान के पास दीक्षा ले ली। भगवान के वो डिसाइपल बने, शिष्य बन गए अपने अपने विद्यार्थियों के साथ। तो ऐसे और बहुत कई उदाहरण हैं। तो और हमने एक किताब छपाई है बहुरत्ना वसुंधरा, उसमें भी करीब 75 से 80 जितने ऐसे दृष्टांत हैं। सुनो, अब इस बीच में डिस्टर्ब मत करो। कोई समझो कि इधर देखो, कोई जन्म से समझो कि ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई समझो बैकवर्ड क्लास में जन्मा हुआ है, कोई कपड़ा धोने वाला धोबी है, कोई लोहार है, आयरनमैन, कोई ऐसे अलग अलग सुथार है, लकड़ी का काम करने वाला। ऐसे अलग अलग जातियों में जिनका जन्म हुआ है। लेकिन कोई साधु साध्वी के परिचय में आने से, कोई अच्छे धर्मिष्ठ श्रावक श्राविका के परिचय में आने से वो जैन धर्म को बहुत अच्छी तरह पालन करते हैं। हाँ, इस प्रकार से वो कर्म से, आचरण से, भाव से जैन बन सकते हैं। और आगे बढ़ करके अगर उसको भाव हो जाए साधु बनने का, तो साधु भी बन सकते हैं। ऐसे भी उदाहरण वर्तमान काल में हैं। अभी सागर समुदाय के गच्छाधिपति है दौलत सागर सूरी, जिनकी उम्र 100 साल की अभी है, अभी जिंदा है। वो जैन धर्म से जैन नहीं थे, कौन से पटेल थे क्या, पटेल ज्ञाति में उनका जन्म हुआ था। लेकिन दीक्षा भी ली, आगे चल के आचार्य और गच्छाधिपति बन करके अभी विद्यमान हैं। मेरे ख्याल से पालिताना में शायद उनका चातुर्मास शायद होगा। अरे भूतकाल के तो कई उदाहरण है। वर्तमान काल हरिभद्र सूरी जिन्होंने 1444 ग्रंथ रत्न रचना की, वो भी ब्राह्मण थे। और से कितने सारे उदाहरण हैं। शांति सूरी आचार्य भगवान जो अभी करीब 50, 60, 70 साल पहले हुए, और वो भी शेफर्ड माने भरवाड़ थे। उनके गुरु भी भरवाड़ और उनके भी गुरु भरवाड़ माने शेफर्ड थे। बुद्धि सागर सूरी हो गए, वो भी पटेल, बड़े योगनिष्ठ थे, बड़े 108 ग्रंथों की रचना की है। और वो भी जन्म से पटेल ज्ञाति में जन्मे थे, वो जैन कुल में जन्मे नहीं थे। ऐसे कई सारे उदाहरण वर्तमान काल में हैं, जो अजैन होते हुए भी वो जैन बन करके साधु बन गए हैं, अब वो अभी विद्यमान हैं। ऐसे भी कई उदाहरण हैं। इसीलिए हाँ, डोंबिवली में पूरा फैमिली महाराष्ट्रियन पूरे फैमिली ने दीक्षा ले ली है। बोलो, तुमको भी भाव है तो बोलना। भाव तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अकेला है अपने माँ बाप का, और वो ब्राह्मण है तो हम भी ज़्यादा आग्रह नहीं कर पाते। लेकिन इनका जीवन लेकर के ऐसा होता है कि अगर ये स्वीकार तो कितना अच्छा। लेकिन माँ बाप का इकलौता बेटा है, बहनें तो 3 है इसकी, लेकिन लड़का 1 है। वो भी अगर जैन कुल में ऐसा होता तो थोड़ा कह भी सकते, लेकिन ये ब्राह्मण है तो फिर भी अगर माँ बाप की इजाज़त मिल सकती है तो वो भी ले सकता है, नहीं ले सकता ऐसी बात नहीं है। अगर हमारा पाप भी एक ही है और पुण्य भी एक ही जितना है, हाँ, तो हमें क्या मिलेगा? दोनों का फल मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा कि नरक? अरे वाह वाह, क्या पूछता है। देखो, समझो पाप और पुण्य का बैलेंस है। हाँ, 50% पाप किया है, 50% धर्म किया है, तो फिर हमको स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा? ठीक है, पूछता है। कितना अच्छा क्वेश्चन। देखो, हाँ, हम भी कभी सोच में पड़ जाए, ऐसा उनका प्रश्न है। लेकिन इसका जवाब ये है कि देखो, 8 कर्म है जिनके नाम आपको सिखाया गया। 8 कर्म के नाम, पहले कौन बोलेगा? 8 कर्म के नाम बोल जाओ, फटाफट बोल जाओ। देखो इतने बच्चे, और बिना रुके बोलेंगे, एक सांस में 8 कर्म के नाम बोलोगे। मैं 4 ओ ये क्या आरव की आर्यन? आरव बोलता है मैं बिना रुके, बिना सांस लिए 8 कर्म के नाम 4 बार बोलूंगा। हाँ, इधर आओ। 4 नहीं तो 2-3 बार भी बोलेगा तो बड़ी बात है। जरा जोर से बोलना। हाँ जरा तुम, हाँ ये सांस में लेगा, वो जब तुम ले लो। इधर आओ, जरा जोर से, पहले सांस भर लो और फिर बोलो। जरा जोर से नीचे रखना है। चलो मुँह दिखे। हाँ, 8 कर्म। अरे वाह वाह वाह, 4 बार बोला 8 करने के नाम बिना रुके, एक ही सांस में
4 बार बोला। अभी दूसरा कौन बोलेगा? आप जल्दी आओ इधर। अभी वियान बोलेगा, वियान कुमार, जो दूसरी कक्षा में ही स्टडिंग इन 2nd स्टैंडर्ड टुडे, दूसरी कक्षा में पढ़ता है। बीजी चौपड़ी भणी રહ્યો છે અયાન। Come here. हाँ, come here quickly. Stand behind me so that everybody can see you. And now, वेरी गुड। 4 बार पूरा करके 5वीं बार भी कोशिश की इसने बोलने की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इधर आओ बेटा, इधर आओ, तुम भी आओ। धन्यवाद तो लो, भाषक शेख तो नहीं है अभी। चलो आओ, वेरी गुड, धन्यवाद। तुम भी आओ। हाँ, अभी कौन बोलेगा? दूसरा तीसरा कौन बोलेगा? अभी हमारे वीर कुमार आ रहे हैं। चलो, कितनी बार बोलेंगे देखते हैं। चलो कोशिश करो। वेरी गुड। चलो 4 बार तो आप भी बोल गए, अच्छी बात है, बहुत। और कौन बोलेगा? तुम एक बार तो बोलेगे, पूरे नहीं किए। तो अभी आर्यन, आर्यन कुमार, देखो ये बने ट्विंस हैं, आर्यन और आरव। थोड़ा सा, हाँ बस बस। वेरी गुड, एकदम क्लियर बोला 4 बार बराबर। अरे हमको मालूम है, हमको तो वो आगे 1 या 2 बार बोलेंगे, 4 बार बोल रहे हैं बच्चे। ईशान कितनी बार? तुम तो सबसे ब्रिलियंट है ऐसे तो। ये पहले सांस भर लो बराबर, फिर बोलो। इनहेल एंड देन एक्सहेल। जरा ऊपर कोई बात नहीं। वेरी गुड। ये सुन करके आपको भी राज करना चाहिए। चलो हो गया। तो हाँ सुनो, तो 8 कर्म में से 7 कर्म ऐसे हैं जो प्रति समय हमारे बंधन, उनका बंधन चालू ही रहता है। केवल एक कर्म, आयुष्य कर्म, वो जिंदगी में एक ही बार बनता है। दूसरे जो 7 कर्म है ना, वो तो 25, 50, 1,000, लाख भवों तक चलता ही रहे उसकी साइकिल। इस प्रकार की लंबी स्थिति वाले बनते हैं। लेकिन आयुष्य कर्म केवल नेक्स्ट एक ही बर्थ के लिए वो बनता है, ऐसी कुदरत में है। दूसरे एक जन्म का ही आयुष्य बनता है, 2, 3, 4 भवों का एक साथ आयुष्य नहीं बंद होता है। और वो हमारे जीवन, इस जन्म की जितनी आयु हो ना, उसका 2/3 पार्ट पसार हो जाए, केवल 1/3 पार्ट बाकी रहता है, तब वो आयुष्य कर्म बंधने की पहली संभावना होती है। जैसे समझो किसी की आयु 99 साल की है, जन्म की 99 ईयर्स, तो उसमें 2/3 पार्ट माने कितना होगा? 66 साल पूरे होंगे ना, तब अगले जन्म की आयु बंधन की पहली संभावना, बंदे का निश्चित नहीं है। उस वक्त मानव नहीं बंधा अगर आयुष्य, तो बाकी कितने बचे? 33 बचे हैं ना, उसका भी 2/3 पास हो जाएगा। टोटल कितना होगा? टोटल 88। When he will be 88 years old, उस समय अगले जन्म की आयुष्य बंधने की दूसरी संभावना। मानो उस वक्त भी आयुष्य नहीं बंधा है, तो बाकी जो कितने 11 बचे हैं, उसका भी 2/3 पार्ट पास हो जाएगा उस वक्त तीसरी बार। ऐसे करते करते मानो अभी तक आयुष्य नहीं बंधा है, अभी तो लास्ट समय जाने का आ गया। तो लास्ट छल्ला जो अंतर्मुख जिसको बोलते हैं, 48 मिनट से भी कुछ कम समय, उस समय तो अवश्य में दूसरे जन्म की आयु का बंध होता है। और उस वक्त उसके जैसे परिणाम, अच्छे या बुरे विचार, उस वक्त जिस समय आयुष्य का बंध होता है, उस समय हमारे जैसे विचार, मेन तो विचार मेन होते हैं, अच्छे या बुरे,
इस प्रकार की अगला जन्म उसका रिबर्थ होता है। समझ में आया? तो उस वक्त अगर अच्छे भाव हैं तो हेवन में जाता है, उस वक्त अगर अच्छे पहले भले कर्म किया है लेकिन जब आयुष्य बन रहा है उस समय बुरे कोई विचार वगैरह होंगे तो फिर उसको दुर्गति का में जाना पड़ता है एक बार। तो देखो भगवान अपने सैनिक महाराजा ने बहुत भगवान की भक्ति की, तीर्थंकर नाम कर उपार्जन कर लिया, आगे चल के तीर्थंकर अगले दूसरे भाव में होने वाले हैं। लेकिन जब उनकी आयुष्य कर्म का बंध हुआ, वही भगवान के संपर्क में नहीं आए थे, वो तो शिकार कर रहे थे, हंटिंग, और वो हिरनी सगर्भा थी, उसको तीर लगा गया और ऊपर से खुशी मनाई, वो मैं कितना निशानेबाज, एक तीर से 2 को खत्म कर दिया। तो हिंसा वायलेंस का पाप किया, ऊपर से राजी हुए, खुशी मनाई, तो चिकना नरक का आयु बंद पड़ गया है। बाद में भगवान से पता चला कि नरक का आयुष बंद गया है, तो भगवान को बहुत उन्होंने विनती की, प्लीज़ भगवान कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं नरक में मुझे न जाना पड़े, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे। भगवान महावीर भी अपने शिष्य भक्त को नरक से नहीं बचा पाए। भगवान जानते थे कि चिकना पाप बंद गया है, जाना ही पड़ेगा, फिर भी उसके आश्वासन के लिए अलग अलग डिफरेंट 4 उपाय बताए, लेकिन चारों वो फैल गए। आखिर आज वो नरक में हैं, पीछे भले तीर्थंकर बनने वाले हैं, नरक में से निकल करके आगे वो पहले तीर्थंकर पद्मनाभ स्वामी बनने वाले हैं, लेकिन अभी हाल वो पहली नरक में हैं। इसीलिए समझ में आया, जिस समय आयुष्य बंद होता हम जानते नहीं है कब बंधेगा, इसीलिए हमको तो हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, मन में कोई बुरा विचार आने न पाए। अगर आ भी गया तुरंत उसको निकाल दें, भगवान का नाम नवकार मंत्र का स्मरण कर ले, बुरे विचार को हटा दें, बरोबर है। और इसमें भी पर्व तिथि होती है ना, जब अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या वगैरह, उसमें आयुष्य बंध का चांस, संभावना, पॉसिबिलिटी वो ज़्यादा होती है। इसीलिए हम लोग जब अष्टमी वगैरह पर्व तिथियाँ आती हैं तो विशेष प्रकार से धर्म करते हैं, कोई फास्टिंग करता है, कोई हरबीर, कोई एकाशना, कोई पोषण लेते हैं पर्व तिथियों में ज़्यादा। ख्याल में आ गया? वेरी गुड क्वेश्चन। अभी टाइम हो गया है, देखो 11:15 हो गए आज। चलो अभी क्या करेंगे, हाँ प्रार्थना। अणु जैसे मैं बोलूँ आप रिपीट करना, जगह पूरे विश्व की मंगल की कामना करना है। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, और हम मैया अमर तपो, अणु परमाणु शिव बन जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, और हम मैया अमर तपो। इसी बार फिर आपको बोलना है, हाँ याद करना। अणु परमाणु शिव बन जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, और हम मैया अमर तपो। ओम शांति शांति शांति। ત્રણેય લોકના સર્વે જીવોનું કલ્યાણ મંગલ અને શીઘ્ર મોક્ષ થાઓ, એવી મંગલ ભાવના પૂર્વક નમો હરિહંતાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો લો એ સબ સાહુણામ, સબ પાવપણશણો વડમંગો ઈ મંગલમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો ઉવજાયાણમ, યેશો પંચનમુક્કારો
मंगलाणं च सर्वेशे नमो अरिहन्ताणां नमो आयर्याणां नमो लो सब साहुणां सब पावपनाशनो परमं होई मंगल। देखो बच्चे, आज का प्रवचन का जो रिकॉर्डिंग हुआ है ना, वो आप अपना पेरेंट्स को बोले संभाल के रखना। तुम जो बड़े हो जाओगे ना, हाँ, और मानो साधु बन तो अच्छी बात है, नहीं बन सकते पाए, और शादी हुई, बच्चे हुए, तो उनको तुम दिखा सकोगे कि देखो हम जब बच्चे थे तो ऐसे शिविर में जाते थे, हमने भी ऐसे औषध किया था और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, तो बेटा तुम भी जरा शिविर में जाना, ठीक है। हाँ, ऐसे तो हमारे पीयूष भाई और कृति भाई को कहना नहीं पड़ता, वो सब